Okay, then let's start today's session. So, in the last session, we were discussing about how to compare the search engines. So, we have seen two approaches by generating random queries or random IP traces and or generate a random graph. So, so it is very difficult to compare two search engine because no sampling solution is perfect. So there are many ideas which keep on coming. If any researcher who is working in this area, so to compare search engine results or the compare to search engines. So every year they will see that there are new databases of queries, new subgraphs are there. So lots of new ideas are keep on happening. But this problem is getting harder and harder. uh, we have seen that the sites like sometimes you may not be satisfied with the sites like Quora or Stack Overflow, and even many people do not use the Stack Overflow directly for searching, but they search on the Google and then move on to the Stack Overflow. They do not directly search on these sites. Suppose you are getting some problem in the coding, so people do not go directly to these. This is also true for sites like Kaggle. Again, suppose you are interested in some projects, you have some people do not directly search on these sites, but on Google and then want to go there. Uh, the reason is uh, the way they are ranking the things. So Kaggle may be ranking the things based on the uh, results which are good enough or which are latest enough, and Google may be ranking based on the page most visited. So for a beginner who is not in the Kaggle, so they want to know something which is very popular, but the Kaggle might be showing something which is having a better ranking in terms of results. So that is why these search engines are have the different behavior. So any quantitative study which we are doing while we are comparing these things, so it is always a fascinating research area, and it is always a good research problem. So even yesterday after your class, one researcher visited me, and she was asking that how this area is very tough and how to do a research in this area. So usually people think that whenever they have to make any web crawler or any this kind of information driven problem, so they have to look upon the full web. So actually, you are not supposed to index full web or do or compare yourself to the Google. So you have to work with the smaller data sets which are available. Maybe you are indexing only Reuters news data set and you are indexing that, and then you are working on that part only. So whenever you are writing a research paper, doing some coming out with a new idea, so you are testing your algorithm only very smaller data sets or very smaller part of web, not on all of the web. Even these sites, 5 years back, these sites like Quora was not very large. People used to test on sites like Quora. But nowadays these sites are also very huge, so you cannot test anything on this. You need a smaller data sets, which I also told you last yesterday as well, that we keep on getting these smaller solutions or smaller data sets on which we can test it. But the major hurdle which comes is the checking the duplicate documents. So whenever you are working in this, so checking a duplicate document or because it might happen that there are 10 versions of a same document, and if you have not taken care, in your results, all of them are indexed separately, and whenever you somebody search, maybe the first 10 results are the same thing. So this may happen. So this is also used duplicate detection in the plagiarism detection as well. In that also, even when you write your research paper or your thesis, so you will also be doing this using these softwares.
So have you used these softwares, any one of you? No, sir. So whenever you do the research, जब भी आप करोगे, आप अपने गाइड से करोगे, तो यूनिवर्सिटी के पास तो एक फ्री सॉफ्टवेयर है विच इज नेम्ड एज ऑरकुंट, और जो एक काफी पॉपुलर है दैट इज टर्निटिन. So today we will discuss one few of the uh, techniques which actually these uh, software uses, uh, and these softwares actually do not use the the context information. They do not use any semantics, so they just check the plagiarism. So even though they are evolving, but still they are very far away. uh, Search engines like Google, they use all these things. They try to manage all these things, so semantics and all these things. So but right now these softwares are not using all these things. So we know that on the web everything is duplicate, even though only if you compare, many people said only 25% is original content and everything is not, just duplicate maybe 4 times. So whatever websites or whatever data, we do have duplication on the web. And then there are some reason for duplication because of to preserve the data, but there are other reasons that same thing happens at multiple locations. So this you will also see when you write your ME thesis. Uh, so we may put on one our server, and there is another server which is DSpace server in the library. So this happen usually in the PhD thesis. It is replicated at 3 or 4 times. So we need to strictly duplicate detect, and sometime exact match is not required, which is not as common. But in many cases, we need to have a near duplicates. So we sometimes these things may have tell you last modified date, which can tell you the difference between two copies of the page. You need not to look upon the whole data, but in other cases you need to look upon the whole data. So duplication exact match can be detected with the fingerprints, where we are looking for exact match. So our problem, whether we are looking for exact match or approximate match. Exact match is very costly to do, costly in terms of the resources or the time required. So to find whether something exactly matches, so word by word, if you're comparing, it is time consuming and resource required are very high. But in case of approximate match, we can do it in less time. So we can also go with the syntactic similarity with an added distance method that we have earlier discussed. जो हमने 11 string distance, all those we have discussed. We can also go with that. And sometimes similarity threshold to detect the things. Like say if two documents are 80%, more than 80% similar, so they are near duplicates. But these things are not transitive enough. To understand what is transitive, let's say you have a document A. A may, let's say we have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Let's say contents are A. Now I generate B. So in B, I copy all of this, and let's say and add something more. Let's say I add 11, 12 as well. I copied all of these things, or maybe not one, I have not copied one, but rest of things. So still A and B are more than 80% similar. Now in C, let's say again copied everything except few things, and then few things are added as well.
So now if A and B are 80% similar and B and C may be 80% similar, but this is not transitive. It doesn't mean that A and C are also 80% similar, because there are so many things different in the A and C. A and C में काफी कुछ different आ गया, एक तो 11, 12, 13, 14 different आ गया और 1, 2 नहीं है. So this is not transitive. You can say that A and B are similar and B and C are similar, but it doesn't mean A and C are also similar. तो उसकी similarity कम हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि एडिशनल कंटेंट काफी ज्यादा एडिट है या डुप्लीकेटेड है या रिपीटेड है. सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिपीटेड मेनी टाइम्स. So sometimes to avoid duplication, people also repeat the things or add new things. So in that way, they try to avoid this threshold. So near duplication is again a very tricky idea. It is not transitive enough. ये clear है सबको? Yes, sir. So now we will discuss that how then we can compute similarity. So we will introduce a new term which is called shingles. So shingles, as it is pronounced, so it is actually word n-grams. Earlier we have discussed character n-grams. So character level पे हमने discuss किए थे, but word level पे it is called the word n-grams. Like if this is a sentence, इसका अगर 4 ग्राम हम करें, यानी n की वैल्यू 4 रखें, सो n इज इक्वल टू 4 ग्राम क्या होगा कि 4 वर्ड उठा लिए. ए रोज इज ए, दिस इज फर्स्ट सिंगल, फिर पहला छोड़ के अगले 4 उठा लिए. रोज इज ए रोज, दिस इज ए सेकंड सिंगल, फिर सेकंड भी छोड़ के ऐसे हम आगे मूव करते गए. यू नो दैट यू कैन हैव ए सिंपल फॉर लूप एंड जनरेट दिस सेट. ये लिस्ट आप जनरेट कर सकते हो. So this is a 4 gram shingles set. Word n-grams now actually more popular terms rather than shingles. जब से deep learning start हुई है, deep learning में shingle word काफी कम यूज हो रहा है. If you read the papers, recent papers, so deep learning में दो वर्ड यूज होते हैं, character level embedding, उसमें करेक्टर लेवल n-grams यूज होते हैं, और एक वर्ड लेवल एम्बेडिंग जिसमें वर्ड को कंसीडर किया जाता है. तो इन डीप लर्निंग सिंगल वर्ड इज नॉट यूज. अभी रिसेंट पेपर्स में काफी इसका यूज काफी कम हो गया, बट स्टिल दिस वर्ड you can you might see in some papers that people are using shingles. तो shingles है क्या, सिर्फ वर्ड लेवल पे n-gram है, and we generate in this way. Now your document is converted into this set of shingles, and whenever we have to compare two documents, तो हम compare क्या करें, set of single ही compare कर रहे हैं. So we take the intersection, how many are common in these two documents, and then similarly then we have to find the Jaccard coefficient. So Jaccard coefficient अब हमने पहले भी देखा था. न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन आ जाएगी कि कितने कॉमन है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कि टोटल कितने यूनिक है, यूनियन आ जाएगी उनकी. तो उससे हमें पता चल जाएगा कि दो डॉक्यूमेंट कितने कॉमन है. वी नो डैट अगर तो सब कुछ सेम होगा तो साइज ऑफ इंटरसेक्शन एंड साइज ऑफ यूनियन इज सेम, तब आंसर 1 आएगा. तो जकार्ड कोफिशिएंट से हम कंपेयर कर सकते हैं. तो उसमें हम अब एक लेटर कंपेयर नहीं कर रहे दोनों का, हमने सिर्फ शिंगल्स कंपेयर कर रहे हैं. एंड अब शिंगल हियर इज ए 4 वर्ड ग्राम, वो n की वैल्यू बढ़ा भी सकते हो. और ज्यादातर जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है जैसे हम यूज करते हैं, वी टेक n7. सो जब भी आपका इवन व्हेन यू राइट अ पेपर, so your teacher whenever they are checking your paper on plagiarism software, they might take n7. so 7 character का shingles होगा और उसी से फिर मैचिंग आगे आगे होगी. so again plagiarism software में shingle कीवर्ड यूज नहीं होता, उसमें जस्ट सेट ऑफ वर्ड्स यूज होता है.
So computing exact set intersection of single between all pair of document is very expensive. अगर मैं आपको कहूँ कि स्ट्रिंग मैचिंग करनी है, जैसे आप कैसे पता चलेगा कि दो सिंगल्स कॉमन है, स्ट्रिंग मैचिंग करोगे एक एक कैरेक्टर उठा के, तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव. एंड ऑब्वियसली जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था काफी सिंगल्स बन गए, एक सेट में भी काफी सिंगल्स हैं, दूसरे में भी काफी सिंगल्स हैं. स्ट्रिंग मैचिंग से कंपेयर करना कि वेदर दिस इज इक्विवेलेंट. सपोज इसमें n सिंगल्स हैं, इसमें भी n सिंगल्स हैं, तो पहले वाले को उठा के सबसे कंपेयर करना, फिर दूसरे वाले को सबसे करना. सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी. ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तो लूप चलेगी. अब हर सिंगल का साइज कितना है, सपोज उसमें m कैरेक्टर्स हैं, तो इनटू m हर सिंगल को कंपेयर करने में भी लगेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग मैचिंग हो रही है, एक एक करके मैच कर रहे हैं. तो अगर सिंगल का साइज उसके अंदर m कैरेक्टर आ रहे हैं, तो अगर 4 वर्ड का है तो m की वैल्यू 20 तक चली जाएगी, क्योंकि अगर हम मान के चलें कि भी हर वर्ड 5 कैरेक्टर का होता है, तो m can be 20. So this is very expensive, and where it is interactable, it is almost difficult to implement this in a real time. So that's why we have to do away with the exact matching. So हमें approximate करना पड़ेगा. So we have to cleverly choose a subset of single from each. So यानी कि अब इसका एक हम सबसेट बनाएंगे. अब वो सबसेट बनाना कैसे है? So यहीं पर दिस इज अ रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, उस सबसेट को हम स्केच करेंगे. एनी आइडिया, अगर आप सपोज मैं ऐसे सिंगल्स देता हूँ, उसका सबसेट कैसे बनाना है? एनी आइडिया? सपोज मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ एंड आई से कि सबको कंपेयर नहीं करना, सारे वर्ड्स को कंपेयर नहीं करना, तो कुछ वर्ड्स को कंपेयर करना है. तो ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जिनको आप कंपेयर करोगे? Yes, any one of you, any idea? किसी को आइडिया? कुछ भी आप बोलोगे, आपने पूरा डॉक्यूमेंट कंपेयर नहीं करना. यस सृष्टि? सर जो बहुत ज्यादा कॉमन होंगे, जो फ्रीक्वेंट है, दैट यू कैन कंपेयर, बट फ्रीक्वेंटली sir. आपको टर्म फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो हाँ जी. ये भी है, जैसे अगर आपने ये आइडिया दिया, तो ये भी क्या होगा कि एक स्केच ही दे देगा, सबसेट तो दे ही देगा. सो लेट्स से दिस इज आइडिया 1. अभी कितना है वो तो कंपेयर करके पता चलेगा. एनीवन हैविंग एनी अदर आइडिया? So, ऐसे जब भी आप रिसर्च करोगे आपको आइडियाज के साथ ही है ना. जैसे आप सपोज इसमें क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ नाउन निकाल सकता हूँ, लेट्स से कि सिर्फ नाउन को कंपेयर करो. तो बिकॉज वी आर डूइंग द अप्रोक्सीमेट मैचिंग, वी आर नॉट डूइंग एग्जैक्ट तो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है. तो मैंने दोनों में से नाउन निकाल लिए और नाउन को कंपेयर कर रहा हूँ. ऑब्वियसली थोड़ा छोटा सेट हो जाएगा तो कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी. सो ये n की वैल्यू कम हो जाएगी. सो अनदर वन समबडी में से कि सिर्फ नाउन से भी बेटर है कि नाउन तो कई टाइप के होते हैं. सो आप नाउन के अंदर भी नेम्ड एंटिटीज निकाल लो, जो मेन नेम है किसी लोकेशन के, अगर वो यूज हुए हैं. समवन में से दिस, समवन विल से कि नहीं सिर्फ नाउन सफिशिएंट नहीं है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग हमें पता होनी चाहिए. उसमें से हम वर्ब निकाल लेंगे, मे बी प्रेपोजिशंस आर नॉट गुड इनफ. एंड somebody say कि these articles, preposition, stop words सारे निकाल दो, बाकियों को कंपेयर करो. So if you ask different researcher can come out with the different ideas. Some may be very complex कि टाइटल पहले कंपेयर करो अलग से, फिर पहला सेंटेंस ही कंपेयर करो या लास्ट सेंटेंस कंपेयर करो या रैंडमली उठा लो. So someone will say कि इस n में से ही randomly subset बना लो. Why to take this all of these? So multiple ideas. So main concept is कि पूरे का पूरा कंपेयर नहीं करना, इसका सबसेट करना है. उस सबसेट को हम कहेंगे स्केच. ठीक है, so that is a so there can be many ideas to create a sketch of document. अब हम पूरा डॉक्यूमेंट कंपेयर नहीं कर रहे, उसके सिंगल्स बनाए, सिंगल्स के अंदर भी हमने जब बनाने के पहले भी हमने कुछ वर्ड्स रिमूव कर दिए. तो वी आर ओनली कंपेयरिंग द स्केच.
सो अब हमने एस्टिमेट किया बेस्ड ऑन द शॉर्ट स्केच ओनली, सो एस्टिमेट होगा। अब एक्चुअल व्हेन वी यूज अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं की हमने, so this is just a estimate. So when I say कि these two document matches 80%, so this is just estimate because we are not comparing everything. So अब आपका डॉक्यूमेंट आएगा, उसका शिंगल्स का सेट बनेगा, शिंगल्स के सेट में भी आप एक अपना जो भी आइडिया आपका है, सो ये यहाँ पे रिसर्च ओपन है, भी कोई भी नए आइडिया के साथ आ सकता है, और एक स्केच बनेगा और उस स्केच को आप अगेन जकार्ड कोफिशिएंट लगाओगे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वो आप करोगे। सो ये IOU टर्म भी काफी पॉपुलर है, ठीक है, ये भी रिसर्च में कई बार जकार्ड कोफिशिएंट की जगह लोग इंटरसेक्शन ओवर यूनियन टर्म यूज करते हैं। तो दो स्केच को कंपेयर कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी से दैट रिसर्च इज ओपन, सो जब रिसर्चर्स को लगता है कि ऐसे आइडिया दे सकते हैं, फिर ऐसे 1 2 3 4 आइडियाज नहीं आते, ओवर द लास्ट 10 years मोर देन 1000 आइडियाज हैव कम। ऐसे आपको हजारों पेपर मिल जाएंगे जिनमें लोगों ने डिफरेंट वे से स्केच तैयार किए हुए। वी विल डिस्कस 1 or 2 वेज, कुछ तो मैंने अभी हमने ये लिख ही दिए हैं तरीके, बट वी डिस्कस अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग ए स्केच। सो वन वे इज पीपल से क्रिएट ए स्केच वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर में डिफाइंड डिमेंशंस है। सो वेक्टर में डिफाइंड डिमेंशंस है। डिफाइंड डिमेंशंस में एज यू सेड कि हम टर्म फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, यानी कि डिफाइंड कीवर्ड्स पहले से हैं, तो अब ये कौन डिफाइन करेगा? सो ये डिफाइन करने के लिए रिसर्चर्स ने जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के लेट्स से 2000 कीवर्ड्स रखती है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखोगे दे विल से कि ये वी रिकॉग्नाइज ओनली दीस 2000 कीवर्ड्स, और इवन समटाइम्स वेरी स्मॉलर 200 कीवर्ड्स ओनली। तो अगर वो कीवर्ड्स ही उठाते हैं और उसी के बेस पे कंपैरिजन करते हैं। सो काफी बार आपने जब प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में भी हम क्या होता है, जब हम पहली बार सेटअप करते हैं, इट आस्क कि कौन से फील्ड का है, कंप्यूटर साइंस का है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो उसका रीजन क्या होता है? सो टू रिड्यूस द स्केच वेक्टर का साइज रिड्यूस कर देना, फिर वो ही कीवर्ड कंपेयर करते हैं। अगर वो कीवर्ड आ रहे हैं दोनों में आ रहे हैं, देन सेकंड स्टेप लिया जाता है, फिर एक आगे मैचिंग की जाती है। अगर वो कीवर्ड मैच नहीं हुए, पहले स्टेप में ही दोनों डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, तो फिर आगे की मैचिंग नहीं की जाती, यानी पूरा सेंटेंस मैच नहीं किया जाता। सो स्टार्ट यहीं से होता है कि डॉक्यूमेंट दैट शेयर मोर देन दीज डिफाइंड डिमेंशंस, तो नियर डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। और वैसे भी स्केच वेक्टर भी आ गया, तो वी नो दैट वी कैन आल्सो टेक कोसाइन सिमिलरिटी एज वेल। सो जकार्ड कोएफिशिएंट की जगह कोसाइन सिमिलरिटी भी नाउ इट कैन बी डन एज वेल। सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका स्केच तैयार करेंगे। वी मैप ऑल सिंगल्स इन द यूनिवर्स ऑफ जो भी हमारा टूरिस्ट प्रोग्राम क्या है कि हमारा जितना भी फिंगरप्रिंट है, जो भी वेक्टर का साइज है, सो ज्यादातर ये 2 की पावर में लिया जाता है। तो जितना भी हमारा वेक्टर का साइज है 1024 है, तो 2 रेज़ पावर 10 हो जाएगा। तो यानी कि अब स्केच क्या है, एक फिंगरप्रिंट बन गया उसका। सो फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक भी कहते हैं इसे। एंड हर डॉक्यूमेंट का एक फिंगरप्रिंट बनाया एंड देन वी आर मैचिंग दैट। एंड अब फिंगरप्रिंट जब आपका बन जाएगा, सो नाउ अनदर स्टेप व्हिच इज एडेड इज द कि अब फिंगरप्रिंट में इनको किस ऑर्डर में रखना है, ये जो वेक्टर्स की डिफाइंड डिमेंशन, इनका ऑर्डर क्या होगा। सो वो ऑर्डर एक रैंडम परमुटेशन हम डिसाइड करेंगे। इन कीवर्ड्स का ऑर्डर क्या होगा, वो रैंडम परमुटेशन होगी। सो डॉक्यूमेंट डी के लिए भी सेम परमुटेशन होगी और डॉक्यूमेंट D2 के लिए भी सेम परमुटेशन होगी। तो इस तरह से हम रैंडम परमुटेशन करके रखेंगे। अब हमने उसके अब हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो वेक्टर्स हैं, वो एक लाइन पे हमें पता है कि पहले कीवर्ड से कोरस्पॉन्डिंग कितने वर्ड्स हैं, दूसरे कितने हैं, उसमें से हम ये मिनिमम उठा लेंगे। सो ओवर आल सिंगल्स, जितने भी सिंगल्स उनमें मिनिमम वैल्यू उठा लेंगे परमुटेशन में से, एंड देन वी कंपेयर दैट मिनिमम वैल्यू। अगर वो मैच कर रही है,
इट मीन्स कि डॉक्यूमेंट्स में बी मैचिंग. सो व्हाई मे बी? बिकॉज अभी हम सर्टेन नहीं, हमने काफी उसका स्केच बनाया, स्केच के भी हमने वेक्टर स्केच बना लिया, उसके ऊपर भी उसकी परमुटेशन कर दी, एंड देन वी आर पिकिंग अप द मिनिमम वैल्यू. सो दिस वुड बी मोर क्लियर इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो हमने जो भी डॉक्यूमेंट है, वी स्टार्ट विथ जो भी शिंगल्स आए थे उसको एक फंक्शन में मैप किया. तो शिंगल से एक फंक्शन में मैप करने से हम एक 64 बिट का एक पैटर्न मिल जाता है. ये जो फंक्शन क्या कर क्या रहा है, सो ये सिंपल वेक्टर नहीं बना रहा है, 64 बिट का वेक्टर बना रहा है कि पहला जितने 2:64 पहला कीवर्ड है या नहीं है, दूसरा कीवर्ड है या नहीं है, तीसरा कीवर्ड है या नहीं है. तो इस तरह से एक पैटर्न बना लेते हैं. अब इस पैटर्न को हम परमुनेट करते हैं ऑन द नंबर लाइन. और नंबर लाइन में जब भी जो पैटर्न बना उसकी जो वैल्यू है उसकी इसकी परमुटेशन ऐसे करते हैं कि मिनिमम वैल्यू आ जाए. सो वो परमुटेशन, ये जो पाई फंक्शन है, दिस इज पाई, क्या है, एक परमुटेशन ऑर्डर है कि पहली बिट उठानी है, फिर चौथी बिट उठानी है, फिर सातवीं बिट उठानी है, फिर नौवीं बिट उठानी है. सो एक ऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है, रैंडम ऑर्डर है कि कौन कौन सी बिट उठानी है, और उन बिट को उठा के एक मिनिमम वैल्यू जनरेट कर देनी है. सो जो बिट उठाई, यानी 64 बिट थी, सारी बिट्स नहीं उठाई और उसमें से मिनिमम वैल्यू जनरेट कर दी. सो आई एक्सप्लेन इट अगेन. स्टार्ट कहां से किया? स्टार्ट शिंगल्स आए आपके पास, आपने एक फंक्शन बनाया. इस फंक्शन का काम क्या है? इस शिंगल्स को 64 बिट का एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया. अब कैसे करेगा ये? कीवर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, या कुछ और कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी बन सकते हैं. अब काफी रिसर्चर ने यहाँ पे इस फंक्शन को बनाने के काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्रपोज किए हैं. सो बट फॉर टाइम बिंग आप अज्यूम करके चलो कि सिंपल फंक्शन क्या है, कि कीवर्ड है या नहीं है, एक सिंपल फंक्शन बना लिया. अब 64 बिट्स हैं तो उसमें से हमने कुछ बिट्स उठा ली. अब कौन सी बिट उठानी है? वो एक पाई फंक्शन में पहले से डिफाइन है. ये डिफाइन किसने किया? रैंडमली उठा लिया और उसमें से फिर मिनिमम वैल्यू उठा ली. ऐसा हमने डॉक्यूमेंट 1 के लिए किया, ऐसा ही हम डॉक्यूमेंट 2 के लिए करेंगे. सेम वी डिड इट फॉर द डॉक्यूमेंट 2. यानी कि पहले शिंगल्स बनाए, एक फंक्शन f से दोनों की बिट्स जनरेट की कि कहां कहां 1 है, फिर एक परमुटेशन में से कुछ बिट्स उठा ली, उसमें से फिर देखा कि कौन सा मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है. तो अगर तो डॉक्यूमेंट 1 एंड 2 सेम होंगे और हमारे फंक्शन तो सेम ही है, f और परमुटेशन ऑर्डर भी सेम है, तो ये जो वैल्यू होगी ये दोनों में सेम आएगी. अगर तो ये दोनों में सेम आ गई है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस, अब ये फंक्शन f है, इसको भी टाइम कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1. ये पाई है, इसको भी टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ 1. फिर कंपैरिजन भी हमने एक ही कंपैरिजन किया है. तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो चांसेस क्या है? अगर a और b सेम आते हैं सो इसका मतलब डॉक्यूमेंट 1 और 2 सेम है. बट ये तो एक पर्टिकुलर परमुटेशन थी, जैसे एक पाई परमुटेशन पे किया, और हमने सब कुछ तो चेक नहीं किया. तो ऐसा तो रैंडमली भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट 1 एंड 2 बिल्कुल अलग अलग है, बट बाई चांस उनका जो हम कर रहे हैं फंक्शन f और पाई लगा के ये सेम आ सकते हैं. तो हम एक परमुटेशन पे चेक नहीं करेंगे, हम अब ये पाई को चेंज करना शुरू करेंगे, पाई 2, पाई 3, ऐसे 200 परमुटेशन पे चेक करेंगे. अगर हर बारी ये इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों डॉक्यूमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होने की ज्यादा हो गई है. क्योंकि हर वक्त हम क्या करते हैं, शिंगल्स को एक फंक्शन पे मैपिंग कर देते हैं और फिर उसकी परमुटेशन में से कुछ मिनिमम वैल्यू उठा लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं. और ऐसा अगर हम 200 बार करें अलग अलग रैंडम परमुटेशंस पे, तो चांसेस भी दोनों हमेशा इक्वल आए, ये तभी पॉसिबल है कि डॉक्यूमेंट 1 और 2 आर इक्वल ना, तभी पॉसिबल है. ये क्लियर है सबको? यस सर. सो हम मूव कहां से किए? एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए था? शिंगल्स को कंपेयर करना था दोनों सेट्स में, डॉक्यूमेंट 1 में भी और
डॉक्यूमेंट 2 में भी, बट स्ट्रिंग मैचिंग आपको पता काफी हैवी है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा एक स्केच बनाते हैं, बेसिकली सबसेट बनाते हैं। अब सबसेट का मैंने कुछ आइडियाज बताया कि ऐसे भी बन सकता है, बट ओवर द इयर्स, सो दिस पर्टिकुलर जो हम अभी देख रहे हैं, जो अभी हम जो आइडिया देख रहे हैं, सो इसमें जो स्केच बनाया उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वेक्टर बना दिया। ये 64 बिट का भी हो सकता है, 128 कुछ भी साइज का हो सकता है। तो यानी 64 कीवर्ड उठा लिए उसके, और अगर है तो 1 है, नहीं तो 0 है। उसमें से भी एक रैंडम परमुटेशन पाई 1 से मिनिमम वैल्यू उठा ली, कुछ कुछ वैल्यू, अगर दोनों की वो वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट सेम है। बट ऐसा एक्सपेरिमेंट 200 बार कर दिया, 200 बार करना है या 300 बार करना है, ये हमारे ऊपर है। वी कैन डू इट 1000 टाइम करना है। जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ही हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि अगर वो सेम वैल्यू आ रही है, इट मींस कि these documents are equal enough। एडवांटेज सिर्फ कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। स्टिल दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टिल हमारी गलत होने की हो सकती है, बट ज्यादा बार करेंगे तो प्रोबेबिलिटी गलत होने की कम हो जाएगी। और ये फंक्शन एफ और पाई, ये दोनों टाइम सेम रखेंगे हम। सो इस वे से हाँ, वी कैन चेक, वी आर कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट 1 का स्केच एंड डॉक्यूमेंट 2 का स्केच, and this is just an estimate, this is not exact comparison, and over the जितनी बार iteration करेंगे उतना better होता जाएगा। So now again what we can do is जितनी बार हम करेंगे, अब कितनी बार मैच किया है, so A and B are equal if the shingle with the minimum value in the union of document 1 and document is common to both। so किस प्रोबेबिलिटी के साथ होंगे, वो प्रोबेबिलिटी ये होगी, साइज इक्वल होगी। जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी फाइनल आएगी, हमने 200 बार किया है, लेट्स से ये एक्सपेरिमेंट 200 बार किया विद पाई 1 और पाई 2, ऐसे 200 बार किया, और 200 में से लेट्स से 180 टाइम तो सेम आई और 20 टाइम अलग अलग आई, तो यानी कि 90% हमने कहा है कि ये document 1 and document 2 are maybe equal, and this जो जकार्ड कोफिशिएंट से वैल्यू आती है, पीपल प्रूव्ड दैट कि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें। साइज ऑफ इंटरसेक्शन एंड ओवर साइज ऑफ यूनियन, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही आती हैं। सो अगर हम सिंगल्स करके भी करते, अगर हम एग्जैक्ट मैच भी करते, तब भी जो वैल्यू आती है वो इसके बराबर ही आती है। इवन तो मैथमेटिकली ये प्रूव नहीं कर सकते, बट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया है कि ऑलमोस्ट ये लोगों ने क्लेम किया है कि ऑलमोस्ट इक्वल आती है। तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इसमें फिर एग्जैक्ट कोई स्ट्रिंग मैचिंग नहीं की, हमने एक स्केच बना के सिंगल्स का उसको एक फंक्शन में मैप कर दिया, एक परमुटेशन लेके उसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल ली, एंड देन वी आर कंपेयरिंग दैट। So no string matching, no character matching, and still we are equal to the that particular Jaccard coefficient. So this happens, इसका कोई mathematical proof नहीं है। People can check, आप set similarity ऐसे बना के check कर सकते हो, Jaccard ऐसे दो बना के, जैसे इस एग्जांपल में कितनी बार ये कॉमन है, 1 1 कहाँ पे आ रहा है, सो 2 बार 1 1 आ रहा है, और यूनियन अगर हम करें तो यूनिक सेट कितने 5 हैं, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल 5 वो यूनिक है, तो जकार्ड की वैल्यू 0.4 आ रही है। बट अगर मैं फंक्शन से इसको मैप कर दूं, इफ आई मैप लाइक अगर मेरे पास ये है वैल्यूज हैं, 4 पॉसिबिलिटी हैं, और नॉर्मली 0 0 वाली पॉसिबिलिटी को हम नहीं मानते। जकार्ड कोफिशिएंट में नॉर्मली जब हम करते हैं तो प्लस डी को इग्नोर कर देते हैं, डी को इग्नोर कर देते हैं। सो अगर हम ऐसे मिनिमम हैशिंग से करें, जो प्रोबेबिलिटी मैंने बताई आपको, ये दिस इज वेरी सरप्राइजिंग प्रॉपर्टी। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है कि व्हाई दिस कम्स इक्वल, कि जकार्ड कोफिशिएंट तो हमें पता है a ओवर a प्लस b प्लस c, और d को इग्नोर कर रहे हैं, और ये जो प्रोबेबिलिटी है हमने जो हैश फंक्शन से मैपिंग करके बनाई है,
सो ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती, ऑलमोस्ट इक्वल आती है. सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शन, एंड people have seen the reasons why this happens because जो कॉमन कीवर्ड्स होते हैं वो मैटर करते हैं. सो वही अगर आपका ये हैश फंक्शन ठीक है तो इसके इक्वल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इसलिए इस पूरी टेक्निक को हम मिन हैश स्केचेस के नाम से कहते हैं. सो हम रैंडम परमुटेशंस लेते हैं, हमारा फंक्शन रैंडम परमुटेशन के बेस पे है, और उसके बेस पे हम स्केच बना के एंड देन वी अज्यूम की एक्सपेक्टेड वैल्यू जकार्ड के बराबर आने के इक्वल होती है. जैसे इस एग्जांपल में भी ये C1, C2, C3 सेट है. सो इस एग्जांपल में हमने S1, S2, S3 बनाया है. ये वैल्यू कहाँ से है? ये रैंडम परमुटेशन से है, कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है. यू कैन नॉट से कि हाँ ये 1 है, ये कैसे आया. बट अगर आप कंपेयर करोगे तो कॉलम बाय कॉलम अगर कंपैरिजन भी करोगे यू विल सी दैट कि जकार्ड कोएफिशिएंट की वैल्यू इतनी आ रही है तो उसकी भी ऑलमोस्ट उस अगर जीरो है तो जीरो में तो जीरो ही आएगी, बट काफी क्लोजर रहती है वैल्यूज. इस एग्जांपल में भी क्लोजर रहती है. सो अल्टीमेटली डुप्लीकेट डिटेक्शन में व्हाट आई वांट टू कन्वे इज वी डू नॉट एक्चुअली चेक वर्ड बाय वर्ड. हमारे पास मिन हैश स्केच यानी डॉक्यूमेंट का हम स्केच बना लेते हैं, और वो स्केच बनाने के कई तरीके हैं. अभी हमने मिन हैश स्केच देखा है, और उससे फिर हम कंपेयर करते हैं. व्हेन वी कंपेयर दैट विद सम परमुटेशन, तो वो जो फाइनल आउटकम आ रही है दैट इज इक्विवेलेंट विद द एग्जैक्ट मैचिंग, भी उसको मान सकते हैं हम, इवन दो इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल. एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट स्टिल वी कैन अज्यूम कि क्योंकि हमने एवरेज लेनी है ओवर ये पहली परमुटेशन, दूसरी, तीसरी, हमने एवरेज आउट करना है, तो वी कैन से दैट कि दिस कैन आल्सो वर्क. So now we have extremely efficient method in time and resources required for estimating a Jaccard coefficient. Estimating because actual value नहीं है, actual calculation नहीं है, calculating नहीं है. See, this is just estimation. But we still have to coefficients जितने भी होंगे, जितने आपके keywords होंगे, उनके ऊपर करना पड़ेगा. So still it is very slow. And then there are many solutions. Locality sensitive कि सिर्फ आप टाइटल को देखो, सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट को देखो. सो इस तरह से काफी सॉल्यूशंस हैं. पीपल आल्सो से कि सॉर्टिंग कर लो. सो देयर आर मेनी सॉल्यूशन फॉर दैट, बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली फ्रॉम टुडेस लेक्चर दैट कि डुप्लीकेट मैचिंग जब भी हमने कंपेयर करना है, वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर वर्ड बाय वर्ड बट दिस इज ओपन रिसर्च एरिया. अभी भी जब कंपैरिजन किया जाता है, सो यूजिंग दीज फंक्शन से कंपेयर किया जाता है. एंड नाउ डेज रिसेंट 2 इयर्स में ये जो फंक्शंस जो मैं बता रहा हूँ कि बना रहे हैं, ये डीप लर्निंग से आ रहे हैं. फाइनल फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम द डीप लर्निंग नेटवर्क. ठीक है, विच इज वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स. ये क्लियर है सबको?